Hello everyone, welcome to our ECG series. This is the fourth lecture where we learn the J point and the QT interval. Okay, today is our fourth lecture and we will discuss about the J point, what is the J point, what is the importance of the J point, how it is used in a ECG. Routinely, we are not giving that much importance to the J point, but we everyone must must know about the J point. What is the importance of the J point? And today our topic of discussion after J point is the QT interval. Okay, what is QT interval? Now this is the period of the lockdown and the treatment of for the COVID virus. Some as per some research, they are saying that they are asking for the tablet hydroxychloroquine. Okay, so before giving the hydroxychloroquine, we must have to know about the QT interval, why it is important, what is the use of that. We will discuss on next slide. Okay. Now today is the J point. J point. What is the J point? J point is the junction between the termination of the QRS complex and the beginning of the ST segment. क्या होता है J point? What is J point? Junction between the termination of QRS complex. जहाँ QRS complex खत्म होता है. Where the QRS complex end. And the starting of the ST segment, जहाँ से ST segment start होता है, इसका जो ये जो point है, okay, just see, this is the QRS, जहाँ QRS end हुआ और ST segment join हुआ, उनके बीच में एक point है, that is called as a J point. Okay, तो क्या होता है J point? The J point makes the end of the QRS complex and often situated above the baseline, particularly in the healthy young male. कभी-कभी young males में थोड़ा सा ऊपर भी हो, it is normal. अब देखेंगे व्हाट इज द एबनॉर्मलिटी ऑफ द जे पॉइंट. एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, कब बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल है. एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द जे पॉइंट इज सीन विद द वेरियस कॉजेस ऑफ एसटी सेगमेंट एबनॉर्मलिटी. ओके, कभी कभी जे पॉइंट एसटी सेगमेंट के कारण वो एसटी सेगमेंट के साथ ऊपर और नीचे हो जाता है. द पोजीशन डिफ्लेक्शन प्रायर टू द जे पॉइंट इज टर्म एज अ जे वेव. दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द ऑसबॉर्न वेव. ओके, अगर ये देखो इसमें क्लियरली दिख रहा है, ये जैसे हमने देखा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद एक एसटी सेगमेंट होता है, दैट इज द फ्लैट, दैट शुड बी फ्लैट, दैट शुड नॉट बी इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके, ये देखो यहाँ पे इज कॉल्ड एज ऑसबॉर्न वेव. इट इज क्लासिकली सीन इन अ पेशेंट ऑफ हाइपोथर्मिया. ओके, अगर आपको कोई भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखता है एट द प्रायर टू द जे पॉइंट, मींस जे पॉइंट की जगह पे जहाँ जे पॉइंट होना चाहिए उसके पहले एक पॉजिटिव वेव दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑसबॉर्न वेव and that is seen in a patient of hypothermia. There is not much about the J point. There are some few disease condition we will discuss after this lecture. Now we will just move on to, जब हम लोग ST सेगमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे हम फिर से J point को डिस्कस करेंगे, बट at that time आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि what is J point. Now our today's topic is the QT interval. आप सज्जन एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, have some pen and books with you. We have to do some calculations. What is QT interval? QT interval, this is a very important. QT interval is the time from the start of the Q wave to the end of the T wave. Start of the Q wave, जहाँ से Q wave start होती है और T wave end होती है. Okay, जहाँ से Q wave start होती है और T wave end होती है. देखो यहाँ ये Q wave start हुई. ओके, यहाँ से ये देखो Q wave start हुई है एंड एंड ऑफ द T wave. अभी यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए कि अगर कौन सी कंडीशन है. First condition, this is a P Q R S T. Okay, and T के बाद this is the U wave. ना, what is U wave? We will see in next lecture. This P Q R S T. Q केस Q से लेके T तक जो इंटरवल है that is called as a QT interval. This is the case. सेकेंड केस जिसमें क्या हो गया कि ये U वेव T वेव के साथ मिक्स होगी, बट ये U वेव काफी छोटी है, जैसे 1 mm से कम डिफ्लेक्शन है. अगर 1 mm से कम डिफ्लेक्शन है और T के साथ ज्वाइन हो गई तो दिस शुड बी द QT इंटरवल. बट इफ अगर T वेव के साथ U वेव ज्वाइन हो जाती है और नॉच बन जाता है, ओके, दिस इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर, U वेव 1 mm से ऊपर है और T वेव के साथ कंबाइन हो गई, तो यूर QT इंटरवल शुड बी दिस. ओके, rate.
क्या रिलेशन है क्यूटी इंटरवल का? क्यूटी इंटरवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट, मतलब क्यूटी इंटरवल छोटा होगा हार्ट रेट बढ़ेगा, अगर हार्ट रेट कम होगा तो क्यूटी इंटरवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हार्ट रेट बढ़ता है तो क्यूटी इंटरवल कम होगा, हार्ट रेट कम होता है तो क्यूटी इंटरवल बढ़ेगा। इट इज बट नॉर्मल, लोग देखते हैं नीचे में। अभी इम्पोर्टेंट क्या है क्यूटी इंटरवल का? क्यों क्यूटी इंटरवल इम्पोर्टेंट है? क्यूटी इंटरवल को हम लोग इतना रूटीनली नहीं देखते हैं, है ना? काफ़ी हम एसटी एलिवेशन देखते हैं, टी वेव इन्वर्जन देखते हैं, ब्लॉक्स देखते हैं, एंड हम लोग इसीलिए छोड़ देते हैं। बट वी हैव टू, हमें अभी थोड़ा सा और मैच्योरली सोचना है, हमें थोड़ा सा और ईसीजी को और पर्टिकुलरली देखना है, थोड़े थोड़े माइन्यूट्स उसमें से उसमें ऑब्जर्व करने हैं। Like abnormally prolonged QT is associated with increased risk of ventricular arrhythmia, spatially torsed points, है ना? क्या हो सकता है अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग रहा तो पेशेंट को वेंट्रिकुलर अरेथमिया हो सकता है। एंड टॉर्स्ड पॉइंट्स एक कंडीशन है जिसमें दैट इज द पॉलीमॉर्फिक जिसमें पेशेंट का सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है। दिस इज प्रोलॉन्ग क्यूटी। प्रोलॉन्ग क्यूटी मतलब क्यूटी बढ़ गया तो, एंड क्यूटी इंटरवल अगर कम हो गया दैट इज ऑल्सो डेंजरस। दैट इज वन syndrome, congenital short QT syndrome has been found to be associated with the increased risk of paroxysmal atrial and ventricular fibrillation। पेशेंट को paroxysmal atrium या ventricular fibrillation हो सकता है, and that also patient land in a sudden cardiac death। ओके, तो ईसीजी में क्यूटी इंटरवल देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक यू सी एसटी एलिवेशन, बहुत लोग बोलते हैं सर ईसीजी सिखाओ ना सर, उसमें हार्ट अटैक कैसा देखते हैं उतना सीखना है बस, एसटी एलिवेशन कौन सा है, कौन से चेंबर में आता है, बस उतना सिखा दो, ईसीजी सीखना हो गया। बट दैट इज नॉट द ईसीजी रीडिंग, वो तो एक एक फर्स्ट ईयर के बच्चे भी देख लेंगे ना। बट व्हाट अभी आप मैच्योर डॉक्टर्स हो, आप इफ यू आर बी अ स्मार्ट डॉक्टर, so go with all the minutes of ECG, at least these to be। So how to measure the QT interval? QT interval is the time from the, ये हमने देख लिया था, Q wave to the end of the T wave। QT interval should be measured in a lead 2 or 5 or 6, most it's seen in lead 2। Large U wave more than 1 mm that are fused to the T wave should be included in the measurement, है ना? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, U wave जो T के साथ हुई है तो उसे आप QT के साथ मैच कर लो। Smaller U wave and that are separated from the T wave that should be excluded, just like here see smaller T wave है ना, और इसके साथ नहीं है, थोड़ा सा 1 mm से छोटी है उसको छोड़ दो, don't count it in a QT। Hydroxychloroquine prolongs the QT interval। Hydroxychloroquine क्या करता है? prolong QT interval because of blockade of inward cellular potassium current and has known risk of proarrhythmia। तो QT interval हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का टैबलेट देने से पहले भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि पेशेंट को ऑलरेडी QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो तो उसे नहीं देना चाहिए। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज QT? करेक्टेड QT। व्हाट इज करेक्टेड QT? करेक्टेड QT क्या होता है? और QTC, दैट इज कॉल्ड एज अ QTC। दिस अलाउ कंपैरिजन ऑफ QT वैल्यू ओवर द टाइम एट अ डिफरेंट हार्ट रेट। अभी हम लोग mostly QT interval, instead of QT interval we see the QTC। QTC is the most corrected, है ना? और इसमें एरर्स कम रहते हैं। अगर आपका हार्ट रेट अगर वेरिएबल है एट द टाइम वी गो टू द QTC। QTC कैसे, हाउ द QTC should be calculated? It is given by the formula। There are more than 4-5 formulas, but we just discussed on one formula which is easy for the Bazet formula। क्या है ये फॉर्मूला? QTC equals to QT divided by under root of RR। QTC equals to QT interval divided by under root of RR। ओके, मैं इसको बहुत इजी करके आपको बताता हूँ। डोंट गेट सो अफ्रेड ऑफ दिस, डोंट बी अफ्रेड, है ना? और ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं। नाउ डेज देयर आर मेनी एप्स आर अवेलेबल टू फाइंड द QTC। आपको सिर्फ उसमें वैल्यू डालनी है। देयर आर नाउ मल्टीपल एप्स आर अवेलेबल विच कैलकुलेट QTC फॉर यू। एग्जांपल मेड कैलकुलेटर और QTC कैलकुलेटर, इट इज फ्री टू डाउनलोड। सी बट सपोज इन केस अपने पास ड्यूटी है कोविड वार्ड में, है ना, किसी का ECG आया हुआ है, किसी को अरिथमिया का हिस्ट्री है, सो और आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो भाई इट विल टेक वेरी फ्यू टाइम्स।
अगर आपके पास कैल्सी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेजर द क्यूटी इंटरवल। सबसे पहले ये आपका ये पेशेंट का ईसीजी आपके सामने आया है। चलो ओके, वन क्या क्या हमने सीखा था? व्हाट इज क्यूटी इंटरवल, कैसे फाइंड करना है? द क्यूटी इंटरवल फॉर्मूला क्या है हमारा? व्हाट इज फॉर्मूला? क्यूटी सी इक्वल्स टू क्यूटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर आर। क्यूटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर आर। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिया हमने क्यूटी सी इक्वल्स टू क्यूटी। सबसे पहले हमने देखना है क्यूटी इंटरवल क्या था। डेफिनेशन क्यूटी, स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव, इसके बीच में कितने बॉक्सेस है? द बॉक्सेस आर 10 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देयर आर 10 बॉक्सेस। तो 10 बॉक्सेस इनटू 0.04, वन स्मॉल बॉक्स इज 0.04 सेकेंड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। 10 इंटू 0.04 इज 0.40 सेकेंड, लिख लिया। नाउ क्या है? अंडर रूट ऑफ आर आर, दो आर आर के बीच में कितने बॉक्स है? ये एक आर वेव, ये एक आर वेव, इन दोनों आर वेव के बीच में कितने बॉक्स है? देयर आर 21 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, 21 स्मॉल बॉक्स, उसको भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 21 इंटू 0.04, दैट इज 0.84। ओके, द आंसर इज 0.84। तो हमें 40 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 84, दैट इज क्यूटीसी आया 0.43। अभी ये क्यूटीसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वी विल सी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन वगैरह छोड़ देते क्यूटीसी, बट मत छोड़िए, आप बुक में पढ़ेंगे आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा समझने में। देयर आर, इट इज रिटन इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, मैं आपको बहुत ईजी करके बता रहा हूँ। करेक्शन ऑफ हार्ट रेट, एक बार इसको पढ़ लेते। द क्यूटी इंटरवल चेंजेस इन क्यों क्यूटी इंटरवल, क्यों सिर्फ क्यूटी इंटरवल क्यों नहीं देखते भाई? क्यूटीसी वी आर सीइंग क्यूटी इंटरवल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट के हिसाब से क्यूटी इंटरवल वेरिएट होगा। एज द हार्ट रेट इंक्रीजेस द क्यूटी इंटरवल शॉर्ट, these changes make it harder to compare QT interval measured at a different heart rate। ठीक है, तो हमें QT interval एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा अगर हार्ट रेट वेरिएबल है। To account of this and thereby improve the reliability of the QT measurement, the QT interval can be corrected for heart rate using the variety of mathematical formula। है ना, what is the formula? This is the formula, a process often perform ऑटोमेटिकली बाय। अभी हमारे पास जो मॉडर्न ईसीजी है उसमें डायरेक्टली आपके पास क्यूटी से लिख के आएगा, आपको उतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ओके, देयर आर, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट इज नॉर्मल क्यूटीसी एंड व्हाट इज एबनॉर्मल क्यूटीसी। नॉर्मल क्यूटीसी नहीं है, अगर वो क्यूटीसी बड़ा है तो कौन से डिसीज हो सकते हैं, क्यूटीसी अगर कम है तो कौन से डिसीज हो सकते हैं। क्यूटीसी इज प्रोलॉन्ग इफ मेल और फीमेल में अलग अलग वैल्यूज है, बट जस्ट हम लोग एक फिगर लेते हैं नॉर्मल क्यूटीसी ना। तो अब बोलेंगे क्यूटीसी बड़ा है अगर क्यूटीसी 0.45 के ऊपर है। हमारा इस इसमें कितना आया था आंसर? 0.43, दैट इज द नॉर्मल क्यूटीसी। ओके, कब बोलेंगे 0.45 के ऊपर है, दैट इज अ प्रोलॉन्ग। अगर क्यूटीसी 0.50 से भी बढ़ गया, इट इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ टॉर्स डिपॉइंटिस। है ना, टॉर्स डिपॉइंटिस क्या होता है ये हम लोग जब एब्नॉर्मलिटी सीखेंगे ईसीजी में तब सीखेंगे। Twisting of peaks, it is called as a twisting of peaks। It is specific type of abnormal heart rhythm that can lead to the sudden cardiac, देखो कितना है सडन कार्डियक, किसी इंसान की डेथ हो सकती है अगर आपने क्यूटीसी मिस कर लिया। इट इज पॉलीमॉर्फिक VT। व्हाट इज टॉर्स डिपॉइंटिस? इट इज अ पॉलीमॉर्फिक VT, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डी। तब अगर ये हमारा क्यूटीसी 0.50 के ऊपर जाएगा। इफ एबनॉर्मली शॉर्ट, अगर क्यूटीसी शॉर्ट होता है तो भी अच्छा नहीं है। शॉर्ट कितना? 0.30 से कम है, 0.45 से ऊपर या 0.35 से नीचे नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए। A useful rule of thumb is that normal QT is less than half of the preceding R। एक छोटा रूल है, मीन बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यूटी के बारे में, कि वेरिएबल हार्ट रेट के बारे में नहीं यूज होगा, बट क्यूटी इंटरवल आरआर इंटरवल के हाफ चाहिए। ये देखो, ये मैंने एक ईसीजी लिया है यहाँ पे टॉर्स डिपॉइंटिस दिखाने के लिए आपको, बट एग्जैक्ट टॉर्स डिपॉइंटिस क्या होता है वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज अ क्यूटीसी कैलकुलेटर, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है, यू विल गेट अ क्यूटीसी। कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग क्यूटीसी, कॉजेज क्या है प्रोलॉन्ग क्यूटीसी के? कॉजेज क्या है ना?
क्यों हो सकता है? बहुत इजी है, याद रखना भी सारे हाइपो से। व्हाट इज हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम हो गया, हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम कम हो गया, हाइपोकैल्केमिया, कैल्शियम कम हो गया, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो गया बॉडी का, मायोकार्डियल इस्केमिया, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, रेज्ड आईसीटी, एंड मेडिकेशन, कंजेनिटल लॉन्ग कोविड। इसमें से जो रेड है वो आप याद ही रख लो, क्योंकि आपको स्पॉटिंग में वाइवा में पूछ सकते हैं कि व्हाट लिस्ट द diseases which prolong the QTC. ओके, ये हाइपो है बट क्यूटीसी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टेम्परेचर कम हो रहा है, क्यूटीसी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक है, रेज इंडिया इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर किसी का आईसीटी बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो भी क्यूटीसी प्रोलॉन्ग होगा। दीज आर सम वैल्यूज, हाइपोकैलेमिया में क्यूटीसी कितना होगा, हाइपोमैग्नीशिया में कितना होगा, हाइपोकैल्केमिया में कितना होगा, हाइपोथर्मिया में क्यूटीसी 620 ड्यू टू सीवियर हाइपोथर्मिया, है ना। पेशेंट में it cause marked QTC prolongation often associated with bradyarrhythmias and opson waves. Opson waves क्या होता है? We'll see on next slide. Myocardial ischemia, raised ICP, intracranial pressure बढ़ने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल QTC 630 ऊपर चले जाएगा विथ वाइड स्प्रेड टी वेव इन्वर्शन। ये भी हम जब एसटी सेगमेंट पढ़ेंगे ना तब हम लोग देखेंगे। QTC 630 बड़ा हो गया, 0.45 से ज़्यादा है, 0.50 से ज़्यादा है, विथ वाइड स्प्रेड टी वेव इन्वर्जन ड्यू टू सब अरेक्नॉइड हिमोरेज। अगर किसी पेशेंट का हिमोरेज भी है, लुक हाउ इंटरेस्टिंग इज ईसीजी, मींस किसी पेशेंट के ब्रेन में प्रॉब्लम है, वी विल गेट इट इन ईसीजी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग अबाउट ईसीजी। Sudden rise in intracranial pressure due to subarachnoid hemorrhage may produce characteristic T changes, इसको बोलते हैं cerebral T waves. Look, ईसीजी निकाल रहे हार्ट का बट दे आर शोइंग द सेरेब्रल टी वेव्स। क्या होता है सेरेब्रल टी वेव्स? वाइड स्प्रेड डीप टी वेव इन्वर्जन विथ द प्रोलॉन्ग क्यूटीसी। वाइड स्प्रेड रहेगा मोस्ट ऑफ द ईसीजी में, डीप टी वेव रहेगा, टीवी बहुत डीप रहेगा और क्यूटीसी प्रोलॉन्ग रहेगा। आपको पता ही नहीं क्यूटीसी क्या है तो आप हाउ कैन यू फाइंड अ सेरेब्रल टी वेव? दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, इसमें क्यूटी प्रोलॉन्ग है कंजेनिटली। नाउ द लास्ट इज, इसमें से क्यूटी में से लास्ट है हमारा, लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज कॉजेस ऑफ द शॉर्ट क्यूटी। जैसे क्यूटी बड़ा होता है वैसे हमने देखा था, अगर वो 0.45 के ऊपर जा रहा है या फिर कम होता है दैट इज 0.35 सेकेंड या 350 मिली सेकेंड। उसमें से हाइपोकैलेमिया था, हाइपर कैल्सेमिया, कंजेनाइटल शॉर्ट क्यूटी एंड डिगॉक्सिन। देखो ये हाइपर कैल्सीमिया, अगर ज़्यादा कैल्शियम लेवल बढ़ गया, दिस इज ऑल्सो डेंजरस, मार्क शॉर्टिंग ऑफ क्यूटीसी ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया। Hypercalcemia leads to shortening of the ST segment and may be associated with the opson waves. Okay, this is the opson wave. Congenital short QT syndrome. It is the classical ECG of congenital short QT. Very short QTC with tall peak T wave due to the congenital short QT. वही हमें नॉर्मल पता रहना चाहिए, वी कैन लर्न एबनॉर्मल एटोमेटिक। शॉर्ट, अभी इसमें क्या क्या हो सकता है? शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम में बी सजेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, शॉर्ट क्यूटी है तो आप ये हो सकता है, इसके बारे में आप एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ले सकते हैं। लोन एट्रियल fibrillation in young adults, family member with QT interval, family history of sudden cardiac death, ECG showing QTC less than 350 millisecond with tall peak T waves, failure of QT interval to increase as the heart rate slows. Okay, these are all about the QT interval. Very short QT with peak T wave, जो हमने कहा था, है ना। QT छोटा है और T wave देखो कितना बड़ा हो गया हमारा, अभी T wave होने का है। नेक्स्ट इज और एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसटी सेगमेंट में हम लोग देखेंगे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इस्केमिया, व्हाट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ईसीजी में क्या, एसटी वेव में क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट इज टी वेव, दिस इज डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन इज नॉट routinely used nowadays, but we must know what are the if there is any short note on digoxin, you can write this point. Short QT interval due to digoxin, 260 से भी कम हो जाता है।
डिगॉक्सिंग प्रोड्यूस अल्टरनेटिव शॉर्टनिंग ऑफ द क्यूटी इंटरवल अलॉन्ग। किसी पेशेंट को अगर आपको डिगॉक्सिंग शुरू करना है तो क्यूटी इंटरवल देखो, या फिर डिगॉक्सिंग स्टार्ट करने के बाद भी आप देखो। क्या हो सकता है? एट्रियल टेकिकार्डिया, ब्लॉक, साइनस ब्रेडिकार्डिया, एनी टाइप ऑफ एवी ब्लॉक। So these are some important points. Our next tomorrow's topic is ST segment, which is very important topic. We will discuss it on tomorrow's lecture. For anything, any queries on today's lecture, you can just call me at my, you can just WhatsApp me on my this number 759353. Any queries if you have, I will try to solve it, or you just comment it in a comment section. If you like this video, you can share with your college friend. And if you have any students group, you can do share. Okay, so goodbye, take care, have a good time, see you tomorrow, bye.